Hello friends, welcome to GS Core. Myself Viraj, and today I have with me Gaurav Bansal sir. Yes. He is a senior faculty of GS Core and he takes care of Indian economy. So sir, सबसे पहले welcome Thank you. and sir tell me why economy is an important subject in UPSC. See, Indian economy always remains a very important subject, even in order to understand other subjects. Without understanding Indian economy, you cannot have complete grasp of Indian society. Hmm. You cannot completely understand international relations, and there are many motivations from economic factors on every other aspect. Right. Anyways, if we talk about direct relevance of the subject, then for example, now PT is just approaching. Hmm. In PT, on average, 16 to 20 questions are there every year, Hmm. which you can trace to economics. Right. And out of them, roughly half, let's say 8 to 10 questions are coming from theoretical or conceptual base. Right. And about equally 8 to 10 questions are also coming from, let's say, current affairs related Right. themes. Sir, good that you brought me to the point of questions. Sir, in economy, what we have observed is कि either students, मतलब there is a set of students who Yeah. find questions of economy very easy, and similarly there is a set of students who find it very difficult. So what is the reason? मतलब economy में ना सर वो middle path दिखता नहीं है. Yeah. See, economy requires a proper approach. In case you are able to develop approach, by approach, what do I mean? That you should be able to link the various topics with each other. You should be able to understand the impact of one phenomena on another. If you are able to link each other, okay, interlink, sorry, Right. interlink every phenomena. If you are able to develop that correct approach, then you will find it very easy. You do not have to remember things a lot. Okay. All right. And if you are not able to develop that, then you will always find it very difficult because you have to separately remember everything. ठीक है. And those students who are able to develop will find it easy तो always. सर कैसे डेवलप करें? That is the question, sir. कैसे करें? कैसे डेवलप करें? So it is difficult to answer in 5 minutes, 2 minutes. That is something No problem, students have sir. to. Take your time क्योंकि students शायद इसी question का answer ढूंढने के लिए ये video देख रहे हैं. Okay. So see, generally students are expected to absorb this idea over the course when they study economics. Let's say when I'm teaching them, I try to inculcate the right approach and the thinking process as well. Okay, but anyways, if I have to sum it up for the students, then the correct approach would be to be able to interlink various things. Okay, as I just said in short. Now I will, if you are asking me to explain it, I will use certain example for, let's say we are talking about Trump's tariff. Right. Okay, now Right. it is in news, for बिल्कुल सर, example. बिल्कुल. So Trump tariff, let's say people are studying that Trump will impose 26% tariff on India, 104% tariff on China. Right. So you are trying to understand what is the impact of tariff. Okay, Right. but instead of studying that in isolation as a current affair, if you know the theory, if you study your economics well, then you will understand the very idea that Adam Smith gave. Adam Smith ने क्या बोला था कि markets को free होना चाहिए. He talked about free markets. Markets free क्यों होने चाहिए? Because free markets are efficient. Right. फ्री मार्केट से एफिशिएंसी आती है, ग्रोथ होता है. सो फ्री मार्केट लीड्स टू मोर ग्रोथ दैट द वर्ल्ड वाज फॉलोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. Right. सिंस 1990 वी हैव बीन इन ए ग्लोबलाइजेशन फेज. बिल्कुल सर. सो वो ग्लोबलाइजेशन का फेज क्यों आया था? द कोर आइडिया बिहाइंड दैट. अब उसमें भी अगर आप थ्योरी को समझते हैं तो उसका आइडिया ये है दैट when you allow for free market, then let's say France develop very good wine, and if the market is free, France can sell its wine across the world. फ्रांस की जो अच्छी वाइन है वो पूरी दुनिया में लोगों को मिलेगी. ब्राजील की जो अच्छी कॉफी है वो पूरी दुनिया के लिए बनाएगा. मान लीजिए इंडिया कपड़ा अच्छा बनाता है, इंडिया पूरी दुनिया के लिए बनाएगा. तो जो वर्ल्ड का बेस्ट है वो सबको मिलेगा. और क्योंकि वो लोग बनाएंगे जो उसको अच्छे से करते हैं, तो उसका कॉस्ट भी कम रहेगा. उसकी जगह अगर हम मार्केट्स को बंद कर दे, फॉर एग्जांपल स्पेन फ्रांस के प्रोडक्ट्स पे 70% टैक्स लगा दे, तो फ्रेंच वाइन अब स्पेन में नहीं आएगी. बिल्कुल. और स्पेन के लोग लोकल वाइन बनाएंगे बिकॉज वाइन का कंजम्पशन तो खत्म नहीं हो गया. बिल्कुल. अब क्योंकि स्पेन में लोग अब वाइन बनाएंगे, उनका कॉस्ट भी ज्यादा होगा और उनका क्वालिटी भी वो नहीं होगा. दिस इज द चैलेंज वी आर फाइंडिंग नाउ विथ ट्रम्प्स टैरिफ. ट्रम्प अगर टैरिफ लगाता है तो चाइना को अपना माल बेचना डिफिकल्ट होगा. चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में मास्टर करता था, बट साथ में अमेरिका के लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि जो चीजें अब तक चाइना से सस्ते में आ रही थी वो उनको अमेरिका में बनानी पड़ेगी. उनका एक्सपर्टीज खत्म हो गया है और उनका कॉस्ट भी ज्यादा होगा. सो अगर आपने इसको थियोरिटिकली समझा तो आपको किसी भी इंपैक्ट को याद नहीं रखना पड़ेगा. यू विल हैव ए लीनियर फ्लो इन योर ब्रेन. सो दैट इज
how you should be linking the theory to the general issue to the current affair. राइट. ओके, तो आपको पहले ये समझना है कि क्यों लगाते हैं टैरिफ, हम्म. क्यों नहीं लगाते हैं, फ्री मार्केट से क्या बेनिफिट है. राइट. अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टैरिफ आपको कभी चैलेंज नहीं राइट. लगेगा. सो एज अ स्टूडेंट इकोनॉमी मेरे लिए एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है. आई हैव टू इवॉल्व विद इट. आई कैन नॉट स्टडी अ कॉन्सेप्ट इन आइसोलेशन इन इकोनॉमी. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. मतलब जो स्टूडेंट्स की आदत रहती है, हम्म. एंड दैट ऑब्वियसली डज नॉट अप्लाई टू इकोनॉमी. ठीक है सर. सर एक बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों का है, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनोलॉजीज. अच्छा, मैं उससे पहले आपको एक एग्जांपल और देता हूँ. ओके. बिकॉज द क्वेश्चन दैट यू वर आस्किंग अर्लियर, हम्म. लेट्स से आप कह रहे हैं कि आप आइसोलेशन में पढ़ पाते हैं, आप हम्म. चीजों को लिंक नहीं कर हम्म. पाते. हम्म. लेट मी गिव यू अनदर लिंकेज. हम्म. लेट्स से वी स्टडी मॉनेटरी पॉलिसी, हम मॉनेटरी ठीक है. पॉलिसी का टॉपिक पढ़ते हैं. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी में एक टॉपिक आता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट सर. and we study monetary policy committee has a 4% target, राइट. 4% target for inflation. तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ वी शुड बी थिंकिंग, Right. थिंकिंग लाइन क्या होगी. तो मैं सही. ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि 4% इन्फ्लेशन भी हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल. इन्फ्लेशन को खत्म ही क्यों नहीं करना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल. प्राइस को मैं 4% भी क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, हम्म. why not 0%, राइट. why we are not targeting inflation at 0%, why price rise is allowed. Hmm. So the answer is in your microeconomics. Hmm. When you study microeconomics, you will find there is a simple law of supply Hmm. that you study in the beginning. Law of supply simply says when price rise, Hmm. the production increases. Hmm. Supplier supply more when there is a price rise. Right. तो जब जब प्राइस बढ़ेगा, सप्लायर को मोटिवेशन आएगा, सही प्रोड्यूसर को मोटिवेशन आएगा, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूँ. राइट. और उसको मोटिवेशन क्यों आएगा, प्राइस बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और बिल्कुल. ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप होगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बिल्कुल. अगर प्रॉफिट नहीं लगेगा तो वो नहीं बढ़ाएंगे. सो प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है. राइट. तो 4% भी हमें प्राइस राइज इसलिए चाहिए बिकॉज वी वांट टू एनकरेज ऑल आवर प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. बिल्कुल. और जब उनको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, वो और फैक्ट्रीज लगाएंगे, वो और मशीनरी लगाएंगे, वो और ज्यादा लोगों को काम पे रखेंगे, तो उससे Sorry. ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा. राइट. तो अगर इन्फ्लेशन ना हो तो इकोनॉमी में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा. बिल्कुल. तो हम आमतौर पे प्राइस राइज हम्म. की कीमतों के बढ़ने को या प्राइस बढ़ जाने को हम बुरा समझते हैं. राइट. हम लोग समझते हैं कि ये बुरी बात है, राइट. लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि प्राइस का घट जाना डिजास्टर है. हम्म. प्राइस का बढ़ना जहां पे लेट्स से एक फीवर की तरह है, राइट. लेकिन प्राइस का कम हो जाना तो कैंसर की तरह है. राइट. वी मतलब फॉरगेट अबाउट द अदर साइड. मोटिवेशन नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का. कोई मोटिवेशन नहीं होगा और वो लोग जॉब्स कट कर देंगे राइट. और रिसेशन आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सर. सो जैसे मैं समझ रहा हूँ, और शायद बच्चों को अगर हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कम्युनिकेट करें, सो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज कि वो कॉन्सेप्ट बाकी चीजों में बैठता कैसे. जी जी बिल्कुल. अब आप जो पूछ रहे थे वो टर्मिनोलॉजी. यस यस. क्योंकि So- सर मुझे याद है 2 साल पहले दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन बेटा. हम्म. अब ये कहीं पे था नहीं, हम्म. किसी बुक में नहीं था, करंट अफेयर्स में नहीं था, और जब क्वेश्चन आया तो इट वाज लाइक अ बाउंसर. सो हाउ टू हैंडल टर्मिनोलॉजीज. See, terminology is relatively a tricky area Hmm. because there is a particular order to study things. Hmm. You cannot study them in isolation. You can study randomly. कि आज आपने वहां से 5 टर्म उठा लिया, या न्यूज़पेपर में आज आपको 10 आपने नया टर्म पढ़ा तो उसको उठा के पढ़ लिया. ऐसे पढ़ेंगे तो डिफिकल्टी होगा. So there is a specific order. Right. So there is a difficulty 1 level term, there is a difficulty 2 level term. Of course, they are not given like that. Right. I'm using it for simplification. Right. So some terms have a basic difficulty, some terms have a moderate difficulty, Right. some have a higher level of difficulty. तो पहले आपको बेसिक टर्म पढ़ना है, बिल्कुल. उसके बाद आप मीडियम टर्म पढ़ेंगे ना, तो आपको इजी पढ़ने के बाद वो भी इजी लगेगा, हाँ सही. क्योंकि आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं, फिर बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल. सीढ़ी भी आपके लिए एक ही सीढ़ी हो रही है. बिल्कुल. यू आर नॉट जंपिंग टू द सेकंड नाउ. राइट. और दूसरी के बाद तीसरी चढ़ रहे हैं तब भी आपको इजी लगेगा, क्योंकि अब आप फिर से एक ही स्टेप और चढ़ रहे हैं. ठीक आपको 3 स्टेप नहीं चढ़ना, लेकिन आप प्रोसेस में 3rd स्टेप तक यानी कि डिफिकल्ट तक आ गए. लेट मी गिव यू वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा. Okay. Beta is related to stock market. Right. If you want to read terms directly related to stock market, you will have little bit of difficulty. But why not start with, let's say, basic idea of investment? Okay. You study what is investment. सही. Investment is a very easy concept to बिल्कुल. understand to begin with. बिल्कुल. So आप investment से start कीजिए. एक बार आपने investment पढ़ा तो फिर पढ़िए asset क्या है. Assets का idea आपको लगता है because it's easy relatively. Right. Okay. So asset, for example, something which will give you regular income, Hmm. which will give you capital gain, or which you can directly use. Let's say gold, real estate. Either you can use them. आप घर में रह सकते हैं, Right. gold को पहन सकते हैं. Right.
आप घर को किराए पर देकर उससे कमा भी सकते हैं और उसको बेचकर कैपिटल गेन भी कर सकते हैं। दैट्स इट इज एग्जांपल ऑफ एसेट। एसेट को रीसेल किया जा सकता है, एसेट को यूज किया जा सकता है, और एसेट का एक लॉन्ग टर्म वैल्यू है, और प्लस अगर आप किसी और को देते हैं, यू कैन इवन मेक अर्निंग आउट ऑफ इट। ओके, सो नाउ एसेट कैन बी ऑफ टू टाइप, फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट। ठीक So है। where we started investment, Right. easy topic, then asset. यस, Asset is also not very difficult to understand. फिर physical और financial पे आइए बिल्कुल specifically. बिल्कुल। Physical assets will become very specific and financial asset will become very specific. Now financial asset, you cannot use them directly. बिल्कुल। Okay, आपने शेयर खरीद भी लिया तो उसका पर्सनल यूज कुछ नहीं है, you're only buying it to make financial gain out of it. बिल्कुल Okay, सही। so for example you study financial assets like that, then you study financial instrument. Okay, so we are coming from step 0 to step बिल्कुल 1 2 बिल्कुल 3 बिल्कुल। 4. राइट। So अब financial instrument क्या है? Those are those type of financial assets. These are those type of financial assets which you can exchange with others, जिनको आप कभी भी किसी को भी बेच सकते हो। ठीक है। So only those are financial instrument, others are not. For example, your bank fixed deposit, वो आपको इंटरेस्ट देता है और उसका ओवर टाइम वैल्यू बढ़ जाता है एक तरह से, सही बात है, सही तो बात वो भी एक एसेट है, लेकिन आप किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। Right. उसकी डीलिंग नहीं हो रही स्टॉक मार्केट में कि मेरा एफडी है या मेरा आरडी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ए बॉन्ड, ए स्टॉक, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज यू कैन एक्सचेंज विद अदर्स। बिल्कुल। सो अब आपने जब बेसिक आइडिया ले लिया, राइट, अब तो आपको हम समझ लोग में आएगा। इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गए। हाँ, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहुंचे हो तो उसी का एक टाइप है स्टॉक, उसी का एक टाइप है बॉन्ड। अब बॉन्ड्स की कैटेगरी में जाएंगे तो फिर ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, फिर उसमें आप इस तरह से आएंगे ना। अगर आपने रैंडमली आपके फ्रेंड्स ने एक नोट भेज दिया, अब ये कॉमन होता है, आपके किसी वही फ्रेंड ने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, हाँ, बिल्कुल वही आपको सबसे बड़ा किसी ने भेज दिया कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, अब आप उसको सीधा ढूंढोगे, आपने बीच में सारी स्किप कर दी। राइट राइट। तो एक ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे तो ये इजी होगा। कनेक्ट नहीं कर पाते बच्चे, उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते। राइट सर। सर बट अब ये बताइए कि वी आर ऑलमोस्ट 45-40 डेज अवे फ्रॉम प्रीलिम्स। अब ये सारा प्रोसेस कंसोलिडेट कैसे करें, बच्चा इसे फास्ट ट्रैक कैसे करे, हाउ टू डू दैट सर? See, if you have already begin properly with economics, if you understand the concepts, if you are finding it, let's say, easy to understand the various subjects, those who are in category of finding it easy, जिनको सब्जेक्ट समझ में आ चुका है और उसको इजी लग रहा है, उसके लिए तो ये करना आसान है। ओके, उनको तो हम एक अप्रोच पेपर भी दे सकते हैं बना के कि आप यहाँ से शुरू करिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाइए। ठीक। लेकिन जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक बड़ा ही सक्सेसफुल बैच रहा है अभी 5 डे रिवीजन कोर्स। राइट। उसमें हम 2 दिन स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी ही कराते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग केयर, दैट वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक, मूव टू एडवांस, देन एडवांस, एंड वी कवर ऑल द रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर दिस एग्जामिनेशन। रफली 150 to 200 specific terms we cover, along with 150 questions, along with survey and budget. So basically in 5 days, roughly 10 to 12 questions that are going to come from economics will be captured. ठीक है सर। So अब अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोर्स, मेरा बेचना कोर्स है, लेकर ही right, आप कर पाएंगे। right, आई एम नॉट सेइंग दैट right. कि ये कोर्स लेना ही पड़ेगा या कोर्स लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी करना है, आपको ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, आपको अपना टाइम सेव करना है, और अगर आपको लगता है कि टीचर को कुछ ऐसा आता है जिसका आप गेन कर सकते हैं, इंसाइट्स का, नॉलेज का, तो आपको बेनिफिट करेगा। एंड एनीवेज कोर्सेज फॉर फ्री, हमारे तो ज्यादातर इस तरह के कोर्सेज फ्री हैं। हम लोग स्टूडेंट से सिर्फ हमारा नोट्स का रिप्रोडक्शन चार्ज लेते हैं, विच इज हार्डली 500,000 रुपीज। सो हम आपसे क्लासेस के लिए तो इफेक्टिवली चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, उतना तो हमारा वीडियो का स्ट्रीमिंग कॉस्ट है। अगर आप सिर्फ क्लासेस लेते हैं, हमें भी तो उसका एक सर्वर कॉस्ट होता है। सो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इट्स ए फ्री कोर्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 500 या 1000 रुपी आई थिंक इसका फी होगा, जस्ट टू रिकवर। इट इज अबाउट 18 क्वेश्चंस, इट इज अबाउट 36 मार्क्स। हाँ, इट इज अबाउट 18 क्वेश्चंस, एंड गारंटी तो कोई नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। राइट। और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जिससे थ्रू आप क्वेश्चंस को अप्रोच तो कर ही सकते हैं। हाँ, और 150 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर एनीवेज, लेट्स नॉट मेक इट अबाउट माय कोर्स, लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। लास्ट क्वेश्चन सर, कंसिस्टेंटली मतलब व्हेन वी वर आल्सो प्रिपेयरिंग 2 डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, मतलब वी वर आस्क्ड टू एम्फसाइज अपॉन इट, और वही आज भी हो रहा है। So you tell me, sir, from your experience, how important are they for prelims, and what has to be done about them if you feel they are important? Okay, so try to identify the first of all trend that the survey or budget is going to. Okay. Okay, so first of all there would be some trends in data.
So what survey is and, your observation about the trends, sir? for example, current. हाँ, मतलब PYQs के थ्रू No, आपको no, I'm not क्या talking लगता about those trends. I'm talking about economic trends. है? ओके ओके I'm ओके, talking about economic trends. ठीक है। So survey and budget will be giving you some trends. For example, हम्म, आपको एक example से better पता लगेगा. Let's say we are talking about negative liquidity. ओके So last two economic surveys have been highlighting it, ओके and they were highlighting कि एक time आएगा कि liquidity इतना कम हो जाएगा कि crisis आ जाएगा. अब now that time has come. Okay, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ वो क्राइसिस आ चुका है. राइट सो आवर बैंक्स डू नॉट हैव एडिकेट मनी टू गिव लोन. हमारे बैंकों के पास अभी उतना पैसा नहीं कि वो लोन भी दे पाए. द डिमांड फॉर मनी इज मच मोर देन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इंडियन मार्केट एट प्रेजेंट. सो दिस इज अ ट्रेंड विच सर्वे एंड बजट आर हाईलाइटिंग. एंड इट इज आल्सो पोटेंशियल क्वेश्चन नाउ। हाँ, इट इज पोटेंशियल क्वेश्चन. तो इसी तरह से हमें पिक करना पड़ेगा कि किस तरह के ट्रेंड की बात हो रही है, किस तरह के थ्रेट्स की बात हो रही है. लेट मी गिव यू स्पेसिफिक एग्जांपल्स. लेट्स से द economic survey was talking about the labor elasticity of exports. Okay, it's a very very technical topic. Of course वो पीटी में नहीं पूछेंगे. It's not a topic worth of GS. ये ऑप्शनल के लायक तो टॉपिक है, बट they didn't ask this very specific topic. but उस साल उन्होंने एक्सपोर्ट और लेबर को लिंक करके क्वेश्चन जरूर पूछ लिया. बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, which sector has highest labor absorption. राइट राइट तो क्योंकि सर्वे में वो आया था, बिल्कुल and that was because of a government scheme. 2018 में गवर्नमेंट ने न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक चेंज किया था दैट दोज सेक्टर्स विच जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट वी विल गिव मोर सपोर्ट टू देम. उनके लिए 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी अनाउंस की थी. दैट इज रेडीमेड गारमेंट्स एंड द लेदर एप्रल्स. राइट तो वो 2018 का एक टॉपिक था. बिल्कुल इसी तरह फॉर एग्जांपल 2020 में सर्वे कुछ हाईलाइट कर रहा था, उस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसी साल. ओके, सो फॉर एग्जांपल दैट टॉपिक वेरी स्पेसिफिकली वाज वी शेप ग्रोथ, राइट वी शेप Right, रिकवरी. वो मेंस में क्वेश्चन आया था. बिल्कुल और इकोनॉमिक सर्वे 2 साल से उसकी बात, सॉरी दैट वाज 2021 नॉट 20. राइट हाँ, तो 21 में वी शेप रिकवरी आया और 2 साल से उसको हम बच्चे को पढ़ा रहे थे यहाँ क्लास में. तो सर्वे से ऐसा नहीं होता कि कुछ अफलातून कुछ रैंडम उठ के आता है. सर्वे में भी एक ट्रेंड होता है. सही सर्वे कुछ डायरेक्शन देता है, कुछ इशारा करता है. उसको हमें थोड़ा पकड़ना पड़ेगा. और कभी कभी जनरल क्वेश्चन आ जाता है, रैंडम क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं आता. फॉर एग्जांपल स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, दोज आर रैंडम. वो रैंडमली कहीं से भी पिक हो सकते हैं. वो आपको उसके लिए थोड़ा सा इंडिया ईयर बुक भी राइट और और उसके लिए बजट हम भी. अभिषेक सर से तो बात कर ही सकते हैं। हाँ, तो बजट में से स्कीम्स रिलेटेड टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यू टैक्स चेंजेस इंपॉर्टेंट. यूपीएससी नेवर आस्क यू द चेंज ऑफ टैक्स रेट एक्सेट्रा. राइट दे विल ओनली आस्क द कॉन्सेप्ट. राइट फॉर एग्जांपल दिस ईयर देयर इज अ चेंज इन द न्यू इनकम टैक्स सिस्टम. राइट दे विल नॉट आस्क कि न्यू इनकम टैक्स में क्या स्लैब हो गया. They will never ask. Some state PSU can ask that, Right. but they will not ask that. What they will ask, what is the benefit of new tax regime over the old? उसको जोड़ के उसके अराउंड पूछ सकते हैं. So जो टॉपिक्स जहाँ पे चेंज आया बजट में, जिस एरिया में चेंज किया हमने, जहाँ नई पॉलिसी आई, उस टॉपिक पे एक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड स्कीम पूछ सकते हैं. ये तो हुआ बजट. और सर्वे में सर्वे हमेशा कुछ डायरेक्शन देता है. सर्वे हमेशा लेट्स से कुछ गाइडलाइन देता है या सर्वे कहीं कुछ वार्निंग देता है. उन वार्निंग गाइडलाइंस को हमें थोड़ा पकड़ना है. तो हम कोशिश करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे कोर्सेज में आते हैं, उनको तो हम समराइज करके सर्वे का सारा सर्वे का एक summary. जो लेट्स से एक क्रक्स है वो पहुंचा ही दें. right. सो दैट वी ट्राई. सर ठीक है, मतलब एक हम समरी तो दे ही देते हैं बच्चों को, बट अदर देन दैट obviously because economy is a technical subject, so if a student wants to learn from you, तो उसके क्या सोर्स है? सर्वे एंड बजट. Wants to learn from me. हाँ, मतलब he wants to hear from you what economic survey and budget say, especially with respect to UPSC prelims. Sorry, I didn't get the question. So आपके थ्रू वो समझने का जरिया क्या है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट? देखिए, अगर आप ये समझेंगे कि इस बार का बजट क्या कह रहा है, सर्वे क्या कह रहा है, तो उसके लिए बेटर होगा यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो कंप्लीट डिटेल में है. ओके उसको देखे, क्योंकि इट विल टेक हाफ एन आवर. ओके ऐसे समराइज करना डिफिकल्ट होगा कि मैं 2 मिनट में ये बता सकूं कि बजट क्या कह रहा है, सर्वे क्या कह नहीं, रहा है. दैट वाज एक्चुअली माय क्वेश्चन कि मतलब देयर शुड बी सम सोर्स ना, जिसके थ्रू बच्चा आपसे देख के सीखे, मतलब नॉट ऑफ कोर्स. हाँ, वही सोर्स मैंने बताया. राइट On our YouTube channel where you are Okay. watching this video, there is another video of mine where I've covered survey in summary. ठीक Okay, है. where we have covered budget in short summary. Then our website also has a document where there is a general economic survey summary, and then there is
इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस बाय गौरव बंसल, वो भी आपको सेपरेटली मिलेगा, उसमें सिर्फ एनालिसिस है, इट्स नॉट ए समरी ऑफ सर्वेज, तो वो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है। फिर आपको टर्मिनोलॉजी का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको स्कीम का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। सो हमारी वेबसाइट पे मेरे नाम से आपको काफी सारे डाउनलोड्स मिलेंगे, या बिल्कुल सर। स्पेशल डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है सर। सो दोज हु आर नॉट इवन विलिंग टू टेक ए कोर्स, एटलीस्ट आप मटेरियल को तो यूज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो सारे मटेरियल जो गौरव सर बोल रहे हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल पिन कर दूंगा, यू कैन यूज इट। एनी सर suggestion for the students in general when it comes to the last leg of preparation for prelims? Last leg of preparation, my suggestion would be that stop looking at extra material, ठीक stop talking to those friends who create panic and who flash new material, new books at you. They create panic and they reduce your confidence as well. है। ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है अब उसको ट्रस्ट कीजिए, अपने पास्ट को। हम्म। आपने कहीं से भी पढ़ा है, वो मान के चलता हूँ किसी भी टीचर ने मेहनत करके ठीक ठाक ही पढ़ाया होगा, हम्म। किसी ने 80 पढ़ाया होगा तो किसी ने 90 पढ़ाया होगा, लेकिन इतना खराब मुझे नहीं लगता मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस में कोई भी पढ़ाता है कि आपको बहुत ही खराब उसने कराया हो। सो एनी टीचर वुड हैव डन सम जस्टिस टू द सब्जेक्ट। सो अब उसको ट्रस्ट कीजिए, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, सर्वे बजट का समरी पढ़िए, हमारा वाला पढ़िए, किसी और का पढ़िए, जहां से भी पढ़िए उसको ऑनेस्टली पढ़िए। राइट। और अगर आपने ऑलरेडी एक पढ़ लिया है तो दूसरा मत उठाइए, अब उसी को ट्रस्ट करके फिर से पढ़िए। एक ही मटेरियल को बार बार रिवाइज करो, ज्यादा मटेरियल मत पढ़ो। डू नॉट कलेक्ट मटेरियल, बाय फ्यू मटेरियल, रीड देम मोर एंड मोर। ओके, दैट्स माय लास्ट सजेशन। ठीक है। So this was Gaurav sir, guys. If you want to connect with Gaurav sir, so we will make it happen also. मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे, मे बी दे आर नॉट इनफ, शायद आपका कोई स्पेसिफिक डाउट होगा, एंड गौरव सर इज हियर विद अस, ही विल हेल्प यू आउट। You can reach out to GS Core, we will get you connected to Gaurav sir. With respect to other survey subjects also, we'll bring such podcast जो आपकी prelims में help करे. Thank you so much sir.